السلام علیکم، ویلکم ٹو فائز عبد الناولس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم میرے مہرباں فائزہ بطول کی 13ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور موسٹ امپورٹنٹ کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں میرے مہرباں کی 13ویں قسط۔ ماموں کی بات مان کر وہ اوپر تو آ گئی تھی اور جس طرح سے آئی تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن کمرے میں جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرتی وہ بالکنی میں چلی آئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے سانپ پر تازگی بیدار کی تھی۔ اپنی کہی باتوں پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ اس گھر سے، زوار سے، نورین سے دور چلے جانا چاہتی تھی، لیکن ماموں کی بات مان کر وہ رک گئی۔ غصہ اتر گیا تھا، طبیعت بوجھل سی کئی دنوں سے تھی، تبھی ٹھنڈی ہوا اس کے اعصاب کو فرحت بخش رہی تھی۔ کھڑی وہ چند پل پہلے ہوئی باتوں کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ اس نے غلط باتیں کی یا نہیں، لیکن ماموں اور ممانی جس طرح چپ کر گئے تھے، ان کی خاموشی زیبا کو اس وقت چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ انہیں نورین کے حق میں بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموش تھے اور زوار بول رہا تھا۔ زوار کی باتوں کو سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بے ساختہ ہاتھ رخسار پر گیا تھا، جہاں ہلکا ہلکا درد اب بھی ہو رہا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوار نے نہ صرف غصہ کیا بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کو دیکھا جو ہنوز بند تھا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید زوار اس پر اٹھائے ہاتھ کی معافی مانگ لے، لیکن اس کی امید ٹوٹ گئی تھی۔ نہ زوار کمرے سے باہر نکلا اور نہ ہی اس کا زیبا سے سامنا ہوا۔ زیبا بالکنی میں پڑی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھ گئی، گھٹنے سینے سے لگائے ان پر ٹھوڑی رکھتے وہ سوچوں میں غرق ہوئی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کب نیند اس پر مہرباں ہوئی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ دوسری جانب زوار کمرے میں ٹھنڈے فرش پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ پاس ہی کانچ کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا اور خون کے قطرے جا بجا پورے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھ کو گھورے وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ ہاتھ سے خون کے قطرے بہہ کر سفید فرش کو رنگ آلود کر رہے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا زیبا اس کی اور نورین کے رشتے کو اتنا گرا ہوا سوچے گی۔ غصے میں وہ اس پر ہاتھ تو اٹھا چکا تھا، لیکن اس کی سزا خود کو بھی دے چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے گلاس دیوار سے مارا اور اس کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں دبوچ کر خود کو اذیت دینے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، خون خود بخود رک کر خشک ہو چکا تھا۔ فون پر ہوتی بیل نے اسے متوجہ کیا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ کچھ مضطرب اور حیران سا ہوتا سیدھا ہوا تھا۔ فون بند ہوا تو کئی پل وہ بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا رہا تھا۔ احتیاط سے اسی کانچ کو ہٹاتے خون وہ زخم کو دھو کر خشک کر چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ زیبا گھر سے باہر نہیں گئی ہوگی، تبھی کچھ مطمئن سا تھا۔ کپڑے بدلتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ اپنے والدین کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن بالکنی کا کھلا دروازہ دیکھ وہ اس جانب چلا آیا، جہاں وہ محترمہ بغیر کسی گرم چادر کے اتنی ٹھنڈ میں چیئر پر بیٹھی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ زوار نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ چاہے جتنا مرضی ناراض تھا، لیکن اسے ٹھنڈ میں بے آرام چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی احتیاط سے اسے بازو میں اٹھائے کمرے میں بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس پر بلینکٹ اڑانے کے بعد وہ ہیٹر بھی آن کر چکا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا زیبا، تم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اس کی رخسار پر موجود اپنی انگلیوں کے نشانات کو سہلاتے وہ مدھم سے لہجے میں بولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیا بات ہے امی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ زوار نیچے پہنچا تو اپنی والدہ کو ٹہلتے پایا، تبھی پریشانی سے ان کی طرف گیا۔ تمہیں متی کا فون نہیں آیا؟ ماں کے پوچھنے پر زوار نے پیشانی مس لی۔ وہ نورین کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ ماں کے کہنے پر زوار نے سر ہلایا۔ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے متی، کچھ نورین کی وجہ سے پریشان ہے اور پھر اعظم بھائی نے اسے کسی مسئلے کے لیے بلایا ہے۔ میں ابھی اسے ہی لینے جا رہا ہوں، آپ نورین سے ایک دفعہ بات کر لیجیے گا۔ بڑی سنجیدگی سے کہتے وہ چلا گیا اور ماں پریشانی میں مبتلا نورین کے کمرے کی جانب چل دی۔ ہولی سے دروازہ کھولنے پر اسے دیکھا جو بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، لیکن ماں اتنا جانتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ نورین، ماں نے بلینکٹ اوڑھے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔
साथ ही ब्लैंकेट को जो हटाए उसके बालों में हाथ फेरा। बेटा, अपनी खाला को माफ़ करना, तुम्हारी माँ से तुम्हारी हिफाजत का किया वादा वफा न कर पाई। माँ की बात पर नौरीन ने तड़प कर उसे देखा और कमरे की मध्यम रोशनी को गहरा किया था। नहीं खाला, ऐसे तो ना बोले, जितना ख्याल और प्यार आपने मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता था। उठकर बैठती वो खाला के सीने से लगी थी। मैं शर्मिंदा हूँ नौरीन, मैं सच में तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। नौरीन के सूजे पपोटे देख वो गुलगीर लहजे में बोली थी। नहीं खाला जान, मैंने आपको हमेशा माँ के रूप में देखा है, बल्कि अपनी माँ को देखा तक नहीं, सिर्फ आपको ही देखा है। मुझे और भाई को अम्मा बाबा के बाद जिस तरह पाला, जितना प्यार दिया, जितना सहारा दिया, जितना साथ दिया, उतना कोई भी नहीं कर सकता था। नौरीन के लफ्ज़ों से उन्हें मज़ीद दुख हुआ था ज़ेबा की बातों पर। जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था नौरीन, और कुछ नहीं खाला जान। मुझे ना तो आपसे कोई शिकवा है, ना जवार से और ना ही खालू से। मुझे दुख सिर्फ ज़ेबा भाभी के बेबुनियाद लफ्ज़ों पर है। खाला जान, मेरा खुदा गवाह है कि आज तक मैंने जवार को एक भाई के अलावा किसी भी गलत रिश्ते की नज़र से देखा हो। हाँ, मैं उनके साथ घुल मिल गई हूँ कि वो मेरे दूध शरीक भाई हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्हें रिश्तों की वजह से हम ज़्यादा करीब हैं। माँ के हाथ थामे नौरीन ने रोते हुए कहा था, जिस पर माँ ने उसका चेहरा थामकर आंसू साफ किए। लेकिन जिस तरह ज़ेबा भाभी ने कहा तो मुझे लगता है खाला जान, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। हर रिश्ते की अपनी खूबी होती है, एहतराम होता है। शायद मैंने और जवार ने मिलकर फ्रैंकनेस से उस एहतराम को ख़त्म कर दिया है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैं कोशिश करूँगी ज़ेबा भाभी के एतबार को जीत लूँ, उन्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। कम से कम मेरी वजह से उन्हें कोई गलत फहमी नहीं रहेगी, और फिर वो और जवार बखैर व आफियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आंसू साफ करते वो छोटी सी लड़की जिस बड़प्पन का मुजाहरा कर गई थी, माँ समेत दरवाजे के पार खड़ी ज़ेबा भी शशोपन में मुब्तला हो गई थी। जिन दबे कदमों से वो उस कमरे के दरवाजे तक आई थी, बहुत से सवाल के जवाब लेकर जा रही थी। उज़्मा, यहाँ मेरी एक अहम फ़ाइल रखी हुई थी, अब नहीं है। अलमारी का दरवाज़ा खोले आज़म कोई फ़ाइल तलाश कर रहा था, जबकि उज़्मा बच्ची को पहलू में लटाए हुए थी। आज़म की आवाज़ पर रुख फेर कर उसे देखा। आप भूल रहे हैं आज़म, आप अपनी अहम राज़ो न्याज़ वक़्त लाइब्रेरी की शेल्फ़ों में रखते हैं, कमरे की अलमारियों में नहीं। उज़्मा कहते हुए फिर से आंखें बंद कर गई, जबकि आज़म ने खामोशी से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और ढीले कदमों से उज़्मा की जानिब बढ़ता उसके पास बैठा। मेरे सभी राज़ो न्याज़ से तो तुम वाकिफ़ हो उज़्मा, फिर भी। उज़्मा का हाथ पकड़कर उसे सहलाते वो मध्यम से लहजे में बोला था, कोई एक ऐसा राज बता दे आज़म, जो आपने अपने लफ्ज़ों में बयान किया हो। उज़्मा ने अपना हाथ छुड़ाया था। आज़म खामोशी से उसका चेहरा देखने लगा, जो सुर्खी लिए हुए था। मतलब वो रोई थी, और वजह आज़म था। मैं ये नहीं कहती मुझे अपने राज बताएं, कम से कम इतनी रोशनी में रखें कि कोई बात मुझ तक पहुँचे तो मैं उसे संभालने में आपकी मदद कर सकूं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता उज़्मा। आज़म ने दोबारा से उसका हाथ थाम कर दोनों हाथों में दबा लिया, मुबादा जैसे वो छुड़ा लेगी, लेकिन हर बार तकलीफ़ दे देते हैं। उज़्मा नम लहजे में शिकवा करती आज़म को परेशान कर गई थी। मैं चाहकर भी तुम्हारी तकलीफ़ों का मदावा नहीं कर सकता। आज़म के लहजे में शर्मिंदगी सी थी। उसे शर्मिंदा देख उज़्मा खुद शर्मिंदा हो रही थी। आज़म के सहारे उठकर बैठी। तुम्हें हर तकलीफ़ से बचाने के लिए ही तुम्हें हर बात से अनजान रखा हुआ है। किसी वक्त पर कोई राज
तुम्हें हर तकलीफ से बचाने के लिए ही तुम्हें हर बात से अनजान रखा हुआ है। किसी वक्त पर कोई राज तुम्हें तकलीफ देंगे। उज़्मा, देर से मालूम होने पर मलाल शायद कम हो जाए। मुझ पर यकीन रखना, मैं कभी तुमसे बेवफाई का मुर्तकब नहीं ठहराया जाऊंगा। आज़म की बात पर उज़्मा सवालिया नज़रों से उन्हें देखती रही थी कि आज़म शायद अभी कुछ बताएंगे, लेकिन वो उज़्मा की पेशानी पर लम्स अता करते हुए कमरे से निकल गए थे और उज़्मा शशोपन में मुब्तला हुई बच्ची की जानिब मुतवज्जो हुई थी। हाय अल्लाह, मेरा कंधे को पकड़े वो उसे सहलाते लब भेजकर दर्द को छुपाने की सही कर रही थी, लेकिन उसका अपने शाने को मजबूती से थाम कर साकत हो जाना बता रहा था कि वो अज़ियत में थी। माजरत, में आंखें हैं या अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते? ये जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्या उन्हें किराए पर चढ़ाकर आ रहे हो? सिद्रा तो कंधे को थामे उस सामने खड़े सूटेड बूटेड कोट यूनिफॉर्म पहने शख्स को देखते ही शुरू हो चुकी थी। देखें, आप गलत बात कर रही हैं, मैं माजरत कर रहा हूँ। सामने खड़े शख्स ने अपनी स्याह ऐनक को उतारते उस छोटी सी लड़की को देखा जो नकाब पहने खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, जैसे सालम निगलने का इरादा रखती हो। मोहतरमा, आपकी माजरत से मुझे क्या हासिल होगा, ज़रा बताएं। क्या मुझे इस वक्त जो तकलीफ़ हो रही है उसका इज़ाला कर सकते हैं? अब की बार सिद्रा की आंखों में दर्द के बायस आंसू थे, जिन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करते वो गुलगीर लहजे में कहती सामने खड़े शख्स को हैरान कर गई थी। वो तो उस छुई मुई सी लड़की के हर बदलते तासुर को देख रहा था, जो पल पल उसे हैरान कर रही थी। देखिए, मैं जानबूझकर तो आपकी तकलीफ़ का बायस नहीं बना, गलती आपकी है। मैं फिर भी आपकी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते माजरत कर रहा हूँ। उस खूबसूरत शख्स ने अपनी भूरी आंखों से उसे देखते कहा था, जिसकी बात पर सिद्रा के सर पर लगी और तलवों पर बुझी। आपके कहने का मतलब क्या है? एक तो गलती की, फिर माजरत भी लठमार अंदाज में कर रहे हैं, जैसे एहसान कर रहे हो आप, और ऊपर बातें भी सुना रहे हैं। अजीब धांधली है ये तो। अब ऐसी भी बातें सामने वाले शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थीं। मेरी गलती नहीं थी तो भी मैंने माजरत कर ली। इससे ज़्यादा ना तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ और ना मज़ीद आपकी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरी नज़रों से ओझल हो जाएं। अंगुश्त दिखाकर रुख तब्दील करते वो गुस्से को जब्त करते बोला। सिद्रा की अहरतो इस्तजाब के मारे आंखें उबल पड़ी थी। आए बड़े किस खुशफहमी में मुब्तला हैं आप जनाब? सैयदा सिद्रा के रूबरू अंगुश्त दिखाकर साबित क्या करना चाहते हैं? सब आपकी मर्ज़ी के ग़ुलाम हैं। अरे जाइए, सईदा खुद आपको मुंह ना लगाए, सिद्रा ने भी तड़क कर कहा था। उससे पहले वो शख्स कोई और जवाब देता, वो रुक गया। दिमाग की नसें फटने वाली हो गई थी। तने असाब और नकोश में ज़ब्त के बायस सुर्खी लिए वो खुद हैरान था। एक छोटी सी लड़की उसे गुस्सा दिला गई थी, ये कैसे मुमकिन था? लेकिन जो होना था वो हो गया था। उस पर यकीन करना तो मुश्किल था, पर अब यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह कल नहीं तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह नई किस्त के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ायदा बसूल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।